Dear student, today we are going to start poetry section. So, in English, in poetry section, Solitary Reaper, written by William Wordsworth. So, we will study today Solitary Reaper by William Wordsworth, and this is very important poem from examination point of view. Solitary Reaper by William Wordsworth. Okay. So solitary reaper, we will read paragraphs and regarding the poem, words, meaning, imagery, and other important point in question answer. So let's start. Solitary Reaper by William Wordsworth. You all know William Wordsworth was the poet of the nature, and he was the famous poet. And now we will read poetry paragraph one by one, important lines, their meaning, and question answer. Now see, William Wordsworth. William Wordsworth was the poet of the nature, and this one is very important poem, Solitary Reaper. In Solitary Reaper, now let's see. First, starting poem, we will read about William Wordsworth. He was the poet of nature from 1770 till 1850. He was the poet of nature, and you will see the William Wordsworth. William Wordsworth said that I can see God in the every object of nature. And he was the famous poet of nature and English poetry. He's written so many famous poems and imagery and other famous, technical terms in poetry, poetic diction used by William Wordsworth. So he was the famous poet of nature. And regarding William Wordsworth, we will read. We have already studied in first year sonnet composed upon Westminster Bridge, Lucy Gray. Now in second year, we will study the Solitary Reaper. Now in Solitary Reaper, let's see. Before starting Solitary Reaper, first we will study the Romanticism period. The Romanticism period in English literature roughly extends from second half of the 18th century to the second half of the 19th century. Means from the second half of the 18th until the second half of the 19th century. ये जो मैंने आपको बताया है, तो ये आपने इसको समझ लें कि इंग्लिश में जो एजेस हैं, जिसमें रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म, ये ब्रीफ आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आप विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट ऑफ नेचर थे, तो रोमांटिसिज्म में इन्होंने आपने समझ ले कि 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ से, सेकंड हाफ ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 1750 से ऑनवर्ड, तो ये जो इन्होंने स्टार्ट किया था एंड 19th सेंचुरी के जो है सेकंड हाफ तक। रोमांटिसिज्म में जो है क्या क्या कुछ टर्म्स हैं टेक्निकल, हम मेन कैरेक्टरिस्टिक पहले देख लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग पोएट्री सॉलिटरी रीपर। Poetry is the expression of personal feeling and emotions. You all know that poetry is the expression of personal feeling and emotion. Poetry is the language of patient feeling and emotions. So we can say that poetry is a thought recollected in tranquility. And there are so many definitions regarding poetry, but it's the emotions and feeling concerned with the romanticism. Because in classical poetry, reason, fact and figure, thought, all these things will be noticed out. Imagination is the main source of the poetry. You all know that we have primary imagination, but the poet like William Wordsworth and other like they were considered as called secondary imaginative people, because they see things from the different angle. Like we have noticed that in the Daffodils poem, William Wordsworth said that daffodils are dancing in the air, and they talk with one another. I cannot imagine what they are talking, what they are saying, and they are dancing. So this is like the comparison poet did in the romanticism and romantic poetry. Nature in romantic poetry is living thing, a teacher of man and healing power. Like poetry is it's like if you tease nature, nature will harm you. Nature will harm you. William Wordsworth say. So nature in romantic poetry is a living thing, a teacher of man and a healing power. Now next, the individual is more important. Now see, some romantic words like Byron, Keats, Shelley, Coleridge, they all considered individual importance, and like the individual is sublime and their effect in their individual life, and they were very sympathetic towards nature and the individual and the man.
So these are the characteristics of the romantic poetry, like patience, feelings, emotions, imagination, as compared to the classical poetry. In classical poetry, we will see the reason, logic, fact and figure, totally different from the romantic poetry. There are differences between romantic and classical poetry. So William Wordsworth, Byron, Keats, Shelley, Coleridge, just memorize the name. All these were the famous poets of romantic poetry. Now let's start with the poem. Now these are the first paragraph, first line, first paragraph lines. So let's start first paragraph lines. Behold her single in the field, yon solitary, highlandless, reaping and singing by herself, stop here or gently pause. Now behold her, behold means to see, single in the field. ये पोम स्टार्ट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ जब स्कॉटलैंड जाते हैं, अपनी सिस्टर डॉरोथी रिचर्डसन के साथ एक टूर पे जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि एक लड़की जो है वो जो है शी सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फील्ड, एंड वो ये देखते हैं कि वो लड़की अकेली है और एक गाना गा रही है, हाईलैंडलेस, द गर्ल, हाईलैंडलेस मीन द गर्ल हू लिव इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ स्कॉटलैंड, and the yon solitary means lonely, behold means to see, single in the field, single means alone, reaping and singing by herself, गाना और फसल काटना, स्टॉप हेयर और जेंटली पास, कभी रुक जाए कभी आगे गुजरे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो उनकी सिस्टर होती है डॉरोथी रिचर्डसन, जब उसके साथ वो टूर पे जाते हैं स्कॉटलैंड, तो देखते हैं एक लड़की जो है शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन गैलिक लैंग्वेज which is spoken in Scotland, and she is singing and reaping in a field. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. वो अकेली जो है फसल जैसे कट करना और जो अनाज को इकट्ठा करना, और मतलब melancholy strain means he was singing sorrowful song, so with a sorrowful tune, is overflowing with the sound. उसकी आवाज़ जो है दूर दूर तक वादियों में गूंज रही थी सॉलिटरी रीपर की। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिटरी रीपर की आवाज़ अट्रैक्टिव थी, इन वादियों में गूंज रही थी, और वो अकेले जो है कुछ गा रही थी एंड फसल काट रही थी। Now see, behold means to look at. These are the important words we note down. Highland means mountainous region in the northern Scotland. Please note down these words in your register because these words are very important from examination point of view. आपको examination में words देते हैं, आपको कॉलम मैच करने पड़ते हैं। जब आपको वर्ड याद होंगे तो आपके लिए कॉलम मैच करना बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए जो है मुश्किल होगा। लेस मीन्स गर्ल एंड स्ट्रैंड मीन्स मेलोडी सॉन्ग, कोई सॉन्ग गाना, कोई गमगीन सा गाना गाना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें हमने क्या नोट किया, behold means to look at, highland means mountainous region in the northern Scotland, less means girl, and strand means melancholy song. And now see, so in these paragraph, these words are very important. Now I'll tell you the brief meaning of these lines. William Wordsworth, when visited Scotland with his sister Dorothy Richardson, what he saw that a girl, she was singing a song and reaping in a field. Alone she cut and bind the grain, and she was singing in Gaelic language which William Wordsworth couldn't understand. And she was singing a melancholy song which was, overflowing the whole well profound. So उनकी आवाज़ पूरी दूर दूर तक वादियों में गूंज रही थी, और वो जो है कुछ गमगीन सा गाना गा रही थी, जैसे मैंने आपको बताया melancholy strain means कोई sorrowful tune, कोई गमगीन सा गाना। तो होपफुली ये अपने पैराग्राफ क्लियर होंगे। नाउ इसमें एक और वर्ड लिखा है melancholy strain का, जैसे सैड, melancholy को सिंपली सैड कहते हैं। लाइक ब्रॉड डीप वैली वेल प्रोफाउंड, दूर दूर की जो वादियाँ थी उनकी आवाज़ जो है उन माउंटेनस एरियाज में जो है दूर दूर तक जो है गूंज रही। Now you can see the solitary reaper. Behold her single in a field. Behold का मतलब देखना, और listen for the well profound is overflowing with the sound. ये जो पूरी दूर दूर तक वादियाँ हैं, इनकी आवाज़ जो है, इनकी जो आवाज़ गूंज रही थी सॉलिटरी रीपर की, जो एक लड़की का नाम था, जो सॉलिटरी रीपर जो इन माउंटेनियस एरियाज में स्कॉटलैंड में इनकी आवाज़ जो गूंज रही थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रुक जाते हैं, उनकी आवाज़ अट्रैक्टिव होती है और सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। In the first stanza, now let's see, the poet implores the listener to stop and look at a girl who is reaping and singing by herself in the field. विलियम वर्ड्सवर्थ रुक जाते हैं, देखते हैं क्या लड़की जो है वो गा रही है और फसल काट रही है। Poet asks the listener to stop here or gently pause so as not to disturb the smooth flow of the song.
वो अपनी सिस्टर से भी पूछते हैं कि आइदर वी शुड स्टॉप हियर और जस्ट पास, यहाँ से गुजर जाना चाहिए, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शी कट एंड बाइंड द ग्रेन, शी सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, वो फसल काट रही थी और जो है गमगीन सा गाना गा रही थी। एंड द होल वैली इज फुल ऑफ द सॉन्ग, और ये पूरी जो उनकी वैली थी उसमें आवाज गूंज रही थी। द सॉन्ग साउंड इज क्वाइट टू बी अ बैड वन। अब जैसे ये आवाज जो है उनको सैड वन, सैड वन का मतलब गमगीन था, जैसे मैंने आपको बताया मेलंकली ट्यून, जो समझ नहीं आ रही थी विलियम वर्ड्सवर्थ को, बिकॉज द गर्ल वाज सिंगिंग इन ए गैलिक लैंग्वेज। विलियम वर्ड्सवर्थ को गैलिक लैंग्वेज की बिल्कुल जो है समझ नहीं। Wordsworth emphasizes the girl's isolation by using words such as single, solitary, by herself. ये जो single, solitary ये जो word है ये इसको isolation को show करते हैं. And alone, and the girl is alone but surrounded by nature. Actually विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर थे, तो नेचर का टच जरूर देते हैं, जो भी अपनी उनकी पोएट्री होती है उसमें नेचर का टच जरूर देते हैं. द एक्ट ऑफ द रीपिंग अलोन इन द फील्ड बाइंड द गर्ल टू द अर्थ. Also, as the girl sing and the melody fill the lonely valley, she become almost completely merged with the nature. मतलब हम ये कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं वो जब देखते हैं कि वो लड़की कुछ गा रही है तो उनकी पूरी कह रहे हैं वैली जो है इस नेचर ब्यूटी को, जो है नेचर ब्यूटी को, उसकी आवाज इस तरह इस वैली में गूंज रही होती है जो एक नेचर पोएट ही उसको समझ सकता है और उसके ऊपर लिख सकता है. जैसे एक लड़की अकेले में कुछ गा रही थी और लिख रही थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ उसको जो है नोट करते हैं और उस आवाज को जो है आपको इस तरीके से जो है एम्फेसाइज करते हैं, उसको सिंगल वर्ड और सॉलिटरी वर्ड वो जो है लिखते हैं ताकि शो करे कि ये लड़की जो अकेली थी और वो गाना गा रही थी. एंड शी वाज सिंगिंग एंड शी वाज रीपिंग अलोन. देखिए यहाँ पे भी अलोन वर्ड लगाया हुआ है. और उसके बाद देखें कि ये मेलंकली मतलब जो आवाज थी वो गमगीन थी और जस्ट मर्ज विद द नेचर, मीन शी वाज द पार्ट ऑफ द नेचर. इसमें राइटर ने जो एक टच दिया है कि ही वाज द पोएट ऑफ नेचर एंड ये द सिंपैथेटिक फीलिंग्स विद द ह्यूमन बीइंग्स, एंड और वो पार्ट ऑफ नेचर कंसीडर करते थे जो है. और इसी तरह इस आगे जो है नेक्स्ट देखते हैं. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to the weary bands of traveler in some shady haunt among the Arabian sand. कह रहे हैं अब नाइट एंगल से कंपेयर करते हैं. कह रहे हैं कोई नाइट एंगल जो है इस तरह से चौंड मीन सिंग, बुलबुल की आवाज भी इतनी प्यारी नहीं होती जैसे हम देखते हैं अमूमन ट्रैवलर्स जो होते हैं अरेबियन सैंड्स में, डेजर्ट या जो इन एरियाज में जो शेडी हॉन्ट मतलब जो दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं, थके हुए होते हैं और परिंदों की मीठी आवाज सुनते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं. तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये जो लड़की उनकी आवाज इतनी प्यारी थी, इवन जो माउंटेनियस एरियाज में या जो ये जो अरेबियन सैंड्स वहाँ पे जो शेडी जो हॉन्ट मतलब जो ट्रैवलर्स जो होते हैं ना दरख्तों की छांव के नीचे बैठते हैं और आवाज सुनते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, परिंदों की मीठी आवाज सुनते हैं जो मेलोडियस वॉइस होती है. तो कह रहे हैं इस लड़की की आवाज जो है इनसे भी बड़ी प्यारी थी, मतलब बहुत अट्रैक्टिव थी, जिससे वो काफी जो है इंप्रेस होते हैं. नाइटिंगेल is small singing bird. Chant means sing, गाना. नाइटिंगेल एक बर्ड है और chant का मतलब होता है गाना. Now see, cuckoo, a brown and grey bird known for its melodious singing. कुकू बर्ड जो होता है अपनी प्यारी जो आवाज जो है उसकी वजह से जो है पहचाना जाता है. हेब्राइड्स में ग्रुप ऑफ आइलैंड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ. अब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो स्कॉटलैंड साइड जो उसको उसमें जो हेब्राइड्स वर्ड यूज करते हैं उनके लिए. जैसे ये ग्रे बर्ड मैंने आपको बताया जो अपना फेमस है मेलोडी सिंगिंग के लिए. चॉन्ट का मतलब होता है सिंग करना, गाना. एंड स्मॉल सिंगिंग बर्ड नाइटिंगेल, ये आपने सुना होगा जिससे बुलबुल की प्यारी आवाज होती है. तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसको जो है इस तरीके से समझाते हैं. नाउ ये आप देख सकते हैं, ठीक है, नाइटिंगेल जैसे मैंने आपको बताया इसकी आवाज जो होती है जो बड़ी प्यारी होती है, अमूमन लोग सुनते हैं, दे लाइक द मेलोडियस ट्यून एंड इन अ सिमिलर वे. नेक्स्ट इसको हम देखते हैं, अब आगे इसको रीड करते हैं. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the sea among the farthest bright. करें की आवाज ऐसी प्यारी थी, इवन कुकू बर्ड जो है उससे भी बाहर के मौसम में जैसे कुकू बर्ड की आवाज बड़ी प्यारी होती है, इनसे भी आवाज नाइटिंगेल और कुकू बर्ड से भी इनकी आवाज बड़ी प्यारी थी जो समुद्र की खामोशी को तोड़ रही थी और दूर दूर तक माउंटेनियस एरियाज में, फारदेस्ट मीन दूर दूर तक जो गूंज रही थी इसकी आवाज. तो राइटर्स को जैसे इसमें ना हमने नोट किया है कि पोएट जो है कंपेयर करता है
the sound of solitary reaper, voice of solitary reaper with the melodious voice of nightingale and cuckoo bird. बिकॉज ये जो है कंपेरिजन इसलिए की गई है कि जैसे हमने बताया कि वहाँ पे लोग जैसे कुकू बर्ड और नाइटिंगेल की आवाज़ से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो पोएट उसको कंपेयर करता है कि सेम सॉलिटरी रिपर की आवाज़ भी उससे भी ज़्यादा प्यारी है और अट्रैक्टिव, इसलिए वो वहाँ पे रुक जाते हैं. नाउ सी द मीनिंग. थ्रिलिंग का मतलब था एक्साइटिंग. नेक्स्ट, हेब्राइड, एन आइलैंड ग्रुप ऑफ द कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड. जब हमने पढ़ा था जैसे जो अमूमन जो स्कॉटलैंड में जो आइलैंड्स वगैरह जो थे. नाउ सी द कुकू बर्ड. आप उसको देख सकते हैं, इसकी आवाज़ वगैरह जो है अमूमन प्यारी होती है, लोग सुनते हैं. नेक्स्ट, नाउ सी इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट कंपेयर्ड द वुमेन्स सॉन्ग टू द साउंड ऑफ टू सिंगिंग बर्ड. जैसे मैंने आपको बताया टू सिंगिंग बर्ड से कंपेयर करते हैं. मैंने आपको कौन कौन से नाम बताया, आपको याद होंगे. एक मैंने आपको नाइटिंगेल का बताया, सेकंड मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए किसकी आवाज मैंने बताई, कुकू बर्ड की. नाउ वी कैन सी दैट द वुमेन साउंड इज मोर वेलकम देन एनी चांट नाइटिंगेल travelers in the Arabian desert, and the cuckoo bird in spring never sang with this voice so clearly. कह रहे हैं कुकू बर्ड और नाइटिंगेल की जो आवाज होती है एक्साइटिंग होती है, नो डाउट, थ्रिलिंग साउंड, अट्रैक्टिव, मेलोडियस, बट सॉलिटरी रिपर की आवाज इन दोनों से प्यारी थी, अट्रैक्टिव थी. और विलियम वर्ड्सवर्थ रुक जाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको उनको जो है इनकी आवाज क्लियर सुनाई दे और जो है समझ में आ जाए. तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसलिए वहां पे रुक जाते हैं और पूरी आवाज सुनकर फिर उसको जो है समझने की कोशिश करते हैं. Now next paragraph. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow for old unhappy for of things and better long ago. कह रहे हैं कि कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि लड़की क्या गा रही है. प्लेंटिव नंबर फ्लो का मतलब बहुत सारी लाइन्स गुजर चुकी थी, वो काफी कुछ गा चुकी थी. कह रहे शायद कोई अनहैप्पी, कोई ऐसा वाक्य हुआ होगा, फॉर ऑफ थिंग्स इन द पास्ट एंड बेटर लॉन्ग अगो. कोई जंग लगी होगी माजी में, कोई नुकसान हुआ होगा, कोई ऐसा, उसके बारे में शायद शी सिंगिंग समथिंग दैट इज लाइक द पास्ट हैपनिंग. और इज इट सम मोर हम्बल फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे. आजकल के आए दिन मसले मसाइल होते हैं, हो सकता है इसके ऊपर गा रही हो. और सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन. कोई ऐसी गम, परेशानी उसकी वजह से गा रही हो जो बार बार जो है उनको तकलीफ दे, या उसको ऐसी चीज़ें परेशान कौन हो जो माजी में उनके लिए फ्यूचर में जो है, या माजी में सारी कोई ऐसी चीज़ें जो उनको परेशान करती हो, कोई नुकसान हुआ हो, कोई वॉर हो, या कोई डेली के मसले मसाइल हों, या कोई गम परेशानी हो, शायद इस वजह से ये सब कुछ गा रही है. नाउ गेस व्हाई विलियम वर्ड्सवर्थ वाज गेसिंग कि लड़की क्या गा रही है. इनकी आवाज़ जो है हमें वो आवाज़ तो अट्रैक्टिव थी, बट विलियम वर्ड्सवर्थ क्यों नहीं समझ रहे थे, वो काफ़ी कुछ गा चुकी थी, जैसे हमने पढ़ा प्लेंटिव नंबर फ्लो. एंड व्हाट शी सिंग्स वी नो डोंट नो, द सम नेचुरल सॉरो, कोई गम परेशानी या ऐसी कोई चीज़, बट विलियम वर्ड्सवर्थ उसको समझ नहीं पा रहे थे. अब उसका रीज़न क्या था, ये सब चीज़ें गेस करता है कि डेली मसले मसाइल, कोई गम परेशानी तकलीफ, या जो माजी में कोई नुकसान हुआ हो, वॉर लगी हो, उसके बारे में कुछ गा रही है. दैट इज द गेस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, अंदाजा लगा. Now see, in the third stanza, the speaker is utterly charmed by the woman's song, although he cannot understand the language of the song and so cannot say what they sing about. And the speaker tries to imagine that what the song might be about, because it seems sad. He guessed that her song might be about some old unhappy thing, some past sorrow, pain or loss, or it may be about some battle fought by people long time ago. Or perhaps he says it is a simpler song, so about some present sorrow, pain or loss, or familiar matter. So as I've explained you, that William Wordsworth say that he imagined it might a guess or unhappy song, or loss or pain, or some नेचुरल सॉरो, फैमिलियर मैटर, या डेली के जो मसले मसाइल होते हैं उसके बारे में सब कुछ गा रही है. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ एक सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो है क्या गा रही है.
अंडरस्टैंड, वो प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। Whatever theme the maiden sang, as if her song could have no ending. लड़की जो कुछ भी गा चुकी थी, इसकी आवाज खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। Song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. कह रहे मैंने इस लड़की को जो है अपने वर्क पे फील्ड पे गाना गाते उसने देखा, और सिकल, एज यू नो दैट, एक लकड़ी का हैंडल होता है, उसके ऊपर कर्व शेप ब्लेड होता है, टेल यू नाउ, एंड वो फसल उसे काट रही थी। कह रहे आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने सुना और एक जगह रुक गया। एंड आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट बोर। कह रहे जब मैं वहां से चला जाता हूं, आवाज उनकी खत्म हो चुकी थी, मैंने सुना, उसकी आवाज सुनी जब मैं वहां से चला गया। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है लड़की की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती है, बट ऐसा लगता है द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर। वो आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही थी, बट उनकी आवाज इतनी अट्रैक्टिव थी, ऐसा लगता है उनके ध्यान में उसकी आवाज जो है बैठ जाती है, और अभी भी उनके ध्यान में उनकी आवाज गूंज रही है, और वो उसको बार बार जो है सोच रहे होते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं, बिकॉज उनकी आवाज बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत प्यारी होती है, तो उसकी आवाज को बार बार सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, और वो उनके ध्यान में गूंज रही होती है। नाउ सी दैट इज these two lines are very important, like the central idea of the poem. The music in my heart I bore long after it was heard no more. William Wordsworth said the music was over. मैं वहां से गुजर चुका हूँ, आगे जा चुका हूँ, बट ऐसा लग रहा है मेरे ध्यान में अभी भी आवाज गूंज रही है। और जो है जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे डेफोडिल्स में कहते हैं ना कि जब ये जो स्वीट मेमोरीज होती हैं, दे लीव्स अनफॉरगेटेबल प्रिंट ऑन आवर माइंड, like sweet memory never lost. Whenever we feel it, it add everlasting impact, everlasting joy. जो हमारे लिए ऑलवेज एक स्वीट एक्सपीरियंसेस होते हैं, लवली एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमेशा हम कैप्चर कर लेते हैं, एंड इट एड एवरलास्टिंग जॉय फॉर अस एंड सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड जॉय फॉर अस। ये जो एवरलास्टिंग जॉय होती है हमारे लिए, खुशियाँ होती हैं, जब हम उसको अच्छे से लवली एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, और हम उसको जो है अपनी लाइफ में जब भी उसको सोचते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो हमारे लिए जो है एक सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड जॉय होती है, खुशी होती है, उसको हम जो है नोट करते हैं। सेम हमने पढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, आपने नोट किया होगा, डैफोडिल्स में भी इसी तरह ही बताया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी में आप लाइन्स नोट कर लीजिएगा प्लीज। Now over, sickle a forming tool like a curved blade, मैंने आपको बताया यूज फॉर कटिंग ग्रास, तो ये आपने नोट कर लेना है, कटिंग ग्रास के लिए अमूमन हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसके बाद देखिए द पॉइंट एंड द फॉर्म साइन दैट द स्पीकर अंडरस्टैंड, ये उसकी मीनिंग थोड़ा आप उसको इस तरह समझ लें। Whatever the reaper sing about, listen motionless and still. As he traveled up the hill, he carried a song with him heard long after he could no longer hear it. राइटर कहता है मैं अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें और वो आवाज़ अपने दिल में, अपने ध्यान में बिठा के जब वहाँ से मैं जाता हूँ, तो आवाज़ तो ख़त्म हो चुकी होती है, उस वक्त वो गा चुकी होती है लड़की, फिर भी मेरे ध्यान में आवाज़ जो है इनकी गूंज रही होती है। The beauty of the song had touched his heart and lingered in his mind, giving him joy as he traveled up the hill and carried the song with him long after he could no longer hear it. जब इनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाती है, और जब वहाँ से वो चला जाता है तो कह रहा है कि ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आवाज़ मैंने जो मेरे ध्यान में गूंज रही है, मैंने कैप्चर कर लिया है, एंड दीज आर द लवली एक्सपीरियंसेस व्हिच कैन नॉट फॉरगेट एंड लाइक एवरलास्टिंग जॉय फॉर अस एंड इट लीव्स अनफॉरगेटेबल प्रिंट ऑन आवर माइंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ उसको नोट कर लेते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं कि पूरी जो आवाज़ होती है। नाउ एनालिसिस, पूरे पोएम का जैसे एनालिसिस होता है ना, फॉर्म होता है ना, न्यू पैटर्न में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप समझा करें, मैंने इसको डिटेल में हाईलाइट किए ताकि आप आखिर में एनालिसिस जरूर पढ़ा करें क्या लिखा हुआ है इसमें। नाउ सी पोएम कंसिस्ट ऑफ 4-8 लाइन। इसमें एक्चुअली जो है ये पूरी लाइन्स के बारे में बताया गया है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4-8 लाइन स्टैंजा, ठीक है, तो ये इसमें आपने नोट कर लेना है। जो है द फर्स्ट सेट द सीन, द सेकंड ऑफ टू बर्ड्स कंपेरिजन, पहले में सीन में जैसे इंपॉर्टेंट सीन सेट किया गया कि कहाँ पे लड़की क्या गा रही है, सेकंड में जो है दो बर्ड्स कंपेरिजन है, थर्ड में जो है मीनिंग ऑफ द सॉन्ग जो गेस करता है, फोर्थ पैराग्राफ जो होता है डिस्क्राइब द लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ द स्पीकर।
तो ये जो पैराग्राफ है इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। नाउ सी द पोएम इज रिटन आयम्बिक टेट्रामीटर, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। राइमिंग स्कीम जो है ये जो मैंने लिखी हुई है ए बी इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो ए बी का मतलब होता है पहली लाइन दूसरी लाइन से मैच करती है। राइमिंग स्कीम कहते हैं लाइन के जो लास्ट वर्ड होते हैं उसकी एक जैसी आवाज होती है, जैसे साउंड बाउंड। अंडरस्टैंड, ए बी मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से राइमिंग इसकी मैच करती है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ए बी अंडरस्टैंड, तो ये आपने फर्स्ट और सेकंड, इसी तरह आगे थर्ड फोर्थ, इसी तरह राइमिंग स्कीम है इसकी। और इमेजरी अगर हम देखें, इमेजरी कहते हैं इमेजेस पिक्चर सीन्स वगैरह जो है इसमें, जैसे लाइक बताया गया है कि लड़की अकेले जैसे कुछ गा रही होती है। मिडिल स्टैंजा में डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन बताया गया, माउंटेनस एरियाज, अरेबिया एंड द फॉरेस्ट हैब्राइड्स। ये जो इमेजेस हमें दिखाए गए जो मैंने आपको दिखाए, वैलीज वगैरह के बारे में बताया। तो ये सब जो इसमें राइटर ने ऑडिटरी इमेजरी और विद इमेजेस जो यूज की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, तो ये आपने इमेजरी भी समझनी होती है। इमेजरी का मतलब इमेजेस पिक्चर्स वगैरह, जैसे आपने एक पोएम है इसमें आगे आप पढ़ेंगे, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल, उसमें इमेजेस राइटर ने बताए द सन वेव्स, ये जो इमेजेस हैं। तो ये इमेजरी पोइट्री, एक पोएटिक डिक्शन होता है पोइट के पास, इमेजरी यूज करना। जैसे हम इमेजेस यूज करके आपको अच्छा और नेचुरल जो है, जैसे नेचर पोइट ऑफ नेचर से भी इमोशन, तो आपको और अच्छे तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। Now, figure of speech. Metaphor, the poet compared the reaper with the nightingale. इसमें देखिए मेटाफर यूज किया गया फिगर ऑफ स्पीच में। मेटाफर मतलब किसी कंपेरिजन, हम जैसे कहते हैं, कोई इसमें नाइटिंगेल बर्ड को सॉलिड रीपर के सॉन्ग से कंपेयर किया गया। He even claimed that the song is more thrilling and more beautiful. और ये भी कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि सॉलिड रीपर की आवाज जो है, क्लेम करता है कि इन दोनों से जो है अच्छी थी और प्यारी थी। एपोस्ट्रॉफी यूज की गई है। एपोस्ट्रॉफी मीन्स जैसे हम कहते हैं बिगनिंग में ऐसा लिखा गया है कि फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच an imaginary person or thing is addressed as if present and capable of understanding. ना एक इमेजिनरी पर्सन और थिंग इज एड्रेस, यहाँ पे जैसे किसी चीज, जैसे कहते हैं इमेजिन करना, अंदाजा लगाना। आगे भी इमेजिनरी है, जैसे हमने नोट किया होगा कि क्या इसमें इमेजिनरी चीज, जैसे अंदाजा लगाते कि क्या गा रही है लड़की, इट मीन्स ये एपोस्ट्रॉफी जिसमें इमेजिनरी वगैरह यूज की जाती है। मेटाफर में मैंने आपको बताया कंपेरिजन की जाती है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉलिड रीपर की सॉन्ग को नाइटिंगेल और कुकू बर्ड से कंपेयर किया। नाउ सी द थीम। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Imagination. Sort Reaper is about the power of imagination to transfer common everyday event into representation of larger reality. ये जो डेली के मसले मसाइल, ये सब पावर ऑफ इमेजिनेशन है, जो आपको डेली के मसले मसाइल को एक लार्जर रियलिटी में जो है उसको कन्वर्ट करना। ये एक पोएटिक डिक्शन, पोएट के पास ये एक ऐसा जहन होता है जो चीज़ों को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर। मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर। ये सब चीज़ें जो है हमें जो है एक नेचर प्रोवाइड द सूथिंग इफेक्ट, calmness, firm traumatize the reaper among natural surroundings, is bending on the ground and reaping the grain. ये जैसे लड़की के बारे में बताया गया है, echoing her soul is associated with the singing birds. ये पूरी जैसे इसमें बताया गया कि वो अकेली जैसे कुछ गा रही है, फसल काट रही है, माउंटेनस एरियाज हैं, एंड शी सिंगिंग सॉन्ग। तो इसमें ये सब जो चीजें बताई गई है, यूनिटी ऑफ मैन एंड वुमेन विद द नेचर, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ द नेचर, एंड तो वो अपने इसी तरीके से उनको समझा। ना ये हमने सॉलिड रीपर के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सॉलिड रीपर फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी हमने आखिरी में जैसे इमेजिनेशन, मेटाफर, थीम, क्वेश्चन आंसर जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, जैसे सेंट्रल आइडिया वगैरह इसमें से, और कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं वो भी हम नोट्स में से पढ़ लेंगे। इसमें से हमने डिटेल्स में मैंने आपको वर्ड मीनिंग और पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन और मेन चीज़ आखिरी में जो इसमें राइम, मीटर क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, इन चीज़ों के बारे में हमने जो है बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। होपफुली आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी।